Kota Doria. A Kota Doria sari doesn't begin on the loom. It begins much earlier with the decision. Close to Kota, Rajasthan, in Khetun, this craft finds its home. Rajasthan, a land known for its colors, its layered culture, and its deep rooted traditions of craft, holds within it practices that have been carried forward quietly for generations. It starts with design selection, and this stage itself can take multiple directions. Sometimes a client comes in with a reference or a certain vision. Sometimes inspiration comes from existing samples, archives, or older designs. And often, artisans work by combining elements, lifting a motif from one design, adjusting a border from another, or reworking proportions to create something new. Every single time, a new graph has to be made. This brings us to graph making, one of the most technical stages in the process. The selected design is first drawn freehand onto graph paper. Each line is carefully translated into a grid where every square represents an intersection of threads on the loom. From here, the artisan begins adjusting the design to fit the structure of the fabric. The scale of motifs, the spacing, and the repeat pattern, locally known as gate, are all calculated so that the design flows correctly across the sari. Color is also added at this stage itself. Each section is marked clearly, guiding the weaver during execution, so they know exactly where a color will change, where the design will change during weaving. This becomes especially important later when multiple threads are being handled simultaneously. This graph is not just a drawing, it becomes a working document. Even a small miscalculation here will reflect directly in the final fabric. With the design mapped, the process moves into raw material sourcing. Cotton, silk, and zari are selected depending on the requirement of the sari. Cotton provides structure, silk adds softness and sheen, and zari is used for detailing. The zari often contains real silver, and sourcing these materials requires both experience and significant investment. This stage is usually handled by master weavers or traders. The materials then move into yarn preparation. In reeling, raw silk and cotton are unwound and converted into continuous yarn, a process often carried out by older, highly experienced women artisans whose familiarity with the material ensures consistency and strength in the threads. Once the yarn is prepared, it moves into warping. Here, the yarn is stretched and arranged into long parallel threads that will form the tana or warp. This is a highly structured process where threads are aligned in a specific order and tension, often set across stands locally referred to as pinjri or khoti. During this stage, a distinctive movement can be observed. The artisan uses her fingers in a practiced, almost rhythmic dance like motion, spreading through the threads so they automatically separate and align evenly. It appears effortless but comes from years of familiarity with the material and continuous practice. The length, the count, and sequence are all predetermined because this setup will define the base structure of the sari. After warping, the yarn is dyed, following the color plan already established in the graph. This ensures that the design envisioned on paper translates accurately onto the threads. The dyed yarn then undergoes the par process. The silk yarns are stretched tightly on a godi, and a natural starch solution made from wheat flour or sometimes wild onion is applied. This strengthens the yarn and prepares it to withstand the tension of weaving. Following this, the yarn moves through Raj Bharai and Judai. Raj Bharai is not a frequent process and is typically carried out once in a very long cycle, sometimes even up to 2 years, where the threads are prepared and distributed in bulk. In this stage, ash is used by the artisan as an adhesive, helping in the preparation and setting of threads. And this part of loom preparation can take a little over a day to complete.
Then comes Judai, which is done more regularly, where the warp is carefully joined to the previous one, ensuring continuity in the weaving process. At this point, the process shifts from yarn preparation to loom setup. This is where Jala Banana comes in. This is a highly complex and specialized stage where the simple looking yarn system is transformed into a structured design mechanism. The Jala acts almost like a software program, translating the graph onto the loom. It guides the weaver in executing the design, controlling how threads are lifted, where colors appear, and how zari is introduced through the extra weft. It forms the underlying structure on which the design exists, turning the visual plan into a functional weaving system, all done entirely by hand. Once the jala is set, the loom is ready. These looms are installed inside the weavers' homes, often within a single multi-purpose room. The same space is used for living and working, and the loom becomes a constant presence in daily life. Within these spaces, it is often women who manage multiple stages of the process alongside their daily responsibilities, seamlessly integrating craft into everyday life. Weights can be seen hanging behind the threads. These weights vary in heaviness and help maintain controlled tension across different threads, ensuring stability during the weaving and beating process. The weaving begins with the tana, where the threads are arranged in a fixed sequence: 2 cotton, 2 silk, repeating to form a combination of 8 cotton and 6 silk threads. This creates the base structure of Kota Doria. The shuttle is passed across the wad repeatedly, and after each pass, the thread is beaten into place. What makes this stage distinctive is how this beating is controlled. The pressure and force applied to each thread are always different, and this variation also follows a sequence as the threads are laid. Each thread is set with a slightly varied force depending on its position, the material, the tension, and the evolving structure of the fabric at the moment. There is no fixed formula for this. बेटा आपका क्या नाम है? आफरीन। आफरीन। आफरीन, आप कितने साल से बेटा काम कर रहे हो? 5 साल। 5 साल से काम कर रहे हो, और काम करके कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। घर में काम है, घर में अम्मी अब्बा के साथ रहते हैं। अच्छा काम है, दुनिया की सबसे अच्छी साड़ी बनाते हैं। बहुत बढ़िया। तो खुश हो बहुत आप? अच्छा लगता है। हाँ, और पैसा भी कमाते हैं अच्छे से? पैसे भी कमाते हैं। बहुत बढ़िया। ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस डंडे को? ये जो होती है वो कनपाटी। कनपाटी। और ये किस काम में आती है? इससे ये जो है ना बैलेंस रहती है, बराबर रहती है। साड़ी छोटी बड़ी नहीं हाँ, होगी? नहीं होती है, एकदम लेवल पे रहती है। लेवल पे रहती है। अच्छी बात है। और इसमें कितनी सिरकियां हैं, कितनी आप लोग कहते हो इसको, तीलियां हैं? तिल्ली। कितनी तीली? 2 कम 70 तिल्ली लगती है। 2 कम 70 तीली लगती है। दिस इज अ वेरी 68 North India style of giving a number. When she says it's 2 kam 70, it means 2 less than 70, 68. But here they say 2 kam 20, 3 kam 30, या 4 kam 30, which would mean the same. It is not something that can directly be taught. It is learned through practice, understood over time, and felt through hands. As the Tana and Bana interlock, a fine checkered structure begins to appear. This is a khat. It is formed within the weave itself through the intersection of cotton and silk threads. Each khat is a small square, and together they create the light, open structure of the fabric. On an average, 1 square inch contains about 5.5 khats. शरीफ भाई, मेरे को ये बताइए, आप लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको चिड़ी बोलते हैं। इसको चिड़ी बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं आप यहाँ पे? इनको तीलियां बोलते हैं। तीलियां। सो इनको कश्मीर में कानी बोला जाता है एक्स्ट्रा वेफ्ट के लिए, और बनारस में सिरकी। तो हर जगह की अपनी अपनी भाषा होती है। तो जो कोटा डोरिया का एक जो पहचान होती है, जो मेन होती है, वो हो गई खत। खत होते हैं इसका मेन पहचान। वो खत हो गई जी। अब खत ताने में तो जो लूम, जो तानी सेट कर रहा है जी, उसने बना दिया। अब बाने की खत कैसे बनेगी? बाने की खत ये वीवर बनाता है शटल से। हाँ। तो इसमें खत का टेक्सचर देने के लिए हाँ। जो
हाथ से जो बीटिंग करते हैं जो यान ये डालने बीट के बाद, करेंगे। हाँ, हाँ जैसे अपन ने शटल डाल दिया उधर, हाँ तो उसके बाद जो बीटिंग रहेगी, हाँ जैसे सिल्क का बीटिंग है हाँ तो उसको थोड़ा स्लो बीटिंग करना पड़ेगा, और जो कॉटन का बीटिंग है हाँ। तो उसको थोड़ा ज़्यादा ताकत के साथ बीटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप जो वो मुझसे जब हम पहले बात कर हाँ रहे थे, आपने मुझे बताया कि एक तरीके से 4 लेवल की बीटिंग हाँ होती है, एक एकदम हल्की जी एंड फिर धीरे धीरे बढ़ती हुई और एंड में आपकी 2 जोर से होती है, हाँ, जिससे कि वो चेक बनता है। जैसे अपन सिल्क डालेंगे हाँ तो जब अपन ने इधर से शटल डाला हाँ तो उसको थोड़ा स्लो बीट करेंगे, हाँ फिर जब उधर से शटल आएगा हाँ तो उसको थोड़ा ज़्यादा पावर ज़्यादा बीट लगाएंगे, करेंगे। ज़्यादा बीट करेंगे। हाँ फिर दोबारा जब इधर से अपन कॉटन डालेंगे हाँ तो वो उसमें और थोड़े लेवल का और पावर लेवल की लगाना होगी। पड़ेगा, हाँ, और जब फोर्थ वाला जब डालेंगे तो उसको डबल बीट करना डबल बीट पड़ेगा। करना पड़ेगा। और अगर कॉटन से हम टिश्यू साड़ी बनाते हैं जिसमें एक सिल्क का तानी हाँ, सिल्क और एक हो जाएगी जरी, जरी। तो फिर वो जरी को कॉटन के हिसाब से हाँ बीटिंग करना जी पड़ेगा, तभी वो चेक आ पाएगा, जी, जो कि कोटा डोरिया की पहचान हो मुख्य गई। मुख्य पहचान है। और विड्थ में हाँ 1 इंच में करीब छः 6 छः खत छः बनते छः हैं खत बनते हैं। जी। और अच्छी कोटा डोरिया साड़ी में लेंथ में, हाँ मतलब पूरे ताने में करीब जी, आएंगे 5.5 जब से अपन बुनाई करेंगे हाँ तो 5.5 खत 1 हाँ। इंच में बनेंगे, तो वो एक अच्छी क्वालिटी बनेगी। अब ये जो साड़ी बन रही है हमारी यहाँ पे, हाँ ये हमारी बन रही है टिश्यू विद जी, सिल्क में, टिश्यू सिल्क, सिल्क टिश्यू में। सिल्क टिश्यू तो हमारा एक शटल में आ गई जरी जी। और एक शटल में आ गई सिल्क। हाँ, एक ये जरी वाला है हाँ, और ये सिल्क का है और जो हमारी सारी तीलियां हैं, जी। ये तो जरी थ्रेड, की हो गई, ये कॉटन की है। हाँ कॉटन की। अच्छा ठीक है, और इसमें सिल्क भी है कहीं पे? नहीं, नहीं नहीं, सिल्क हो नहीं सकता सिल्क डिजाइन में, या हो सकता है अगर हम चाहें तो? चाहे तो हो सकता है, लेकिन कॉटन का ही फील अच्छा आता कॉटन है। की फील अच्छी आती है। This is what gives Kota Doria its lightweight, translucent, and airy quality. And importantly, the formation of this khat depends entirely on the control maintained during the bana. The variation in pressure and force directly shapes how these squares appeared. From the first design to the final weave, every stage builds towards this. It takes time, coordination, and a deep understanding of the material at every step. The process is detailed, layered, and requires constant attention. शबनम आप कई सालों से काम कर रहे हैं, हाँ, कई सालों से काम कर रहे हैं। तो ये साड़ी बनाने में आपको कितना समय लग जाएगा? 1 महीने में भी उतर जाती है, 1.5 महीने भी उतर जाती है, मतलब डिजाइन के ऊपर भी है, मेहनत के ऊपर भी है। हाँ, तो जैसे आप सालों से काम कर रहे हैं, आपको ये काम बुनकर बन के खुशी है? हाँ, बहुत खुशी, बचपन से यही काम करते आ रहे हैं। अच्छा, और क्या वजह है? सबके साथ रहने की खुशी है, काम अच्छी मजदूरी मिलने की खुशी है? सबकी खुशी है, सबके साथ रहने की भी, हाँ। और घर बैठे काम करने की, हमारी के घर बैठे सुरक्षित है हम, हाँ। और है ना, जो इसकी मजदूरी भी मिल जाती है हमें, हाँ। और सब परिवार भी साथ मिल जाता हाँ, है। और आप चाहेंगे आपके आने वाले बच्चे वो भी इस काम में आए? हाँ, लग वो रहे हैं ना सीख रहे हैं? बच्चे भी, हाँ बच्चे भी लग रहे हैं इसमें। सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। And in the end, what emerges is something that appears effortless, but is built through precision, patience, and years of practice skill, carried forward by the hands that continue to keep this craft alive. So today we are in Kota, which is of course very famous for the Kota Doria sarees, and I'm currently at the residence cum workshop of Janab Abdul Hakim Saab, and Abdul Hakim Saab is at least a 7th generation weaver, and he's also a national award winner. And I'm here to ask my queries to his son, जनाब मोहम्मद शरीफ। एंड शरीफ भाई, मुझे ये बताइए पहले तो कि आप लोगों को 7 पीढ़ियाँ तो रिकॉर्डेड है जी जिससे आप लोग काम कर रहे हैं। मैं भी कई बरसों से आपसे साड़ियाँ ले रहा हूँ। तो कोटा साड़ियाँ जो होती हैं वो किस किस प्रकार की होती हैं? जी, कोटा साड़ियों के 5-6 प्रकार रहते हैं। एक तो स्टार्टिंग जो साड़ी बनती है वो बिना जरी वाली बनती है, जिसमें बूटी हाँ और स्मॉल बूटी अंदर हाँ। बॉडी में, और पल्ले पे छोटा बूटी। तो जो ऐसा खत साड़ी होती है, बनती जो चेक होती है हमारी, हाँ, वो इसमें सिर्फ कॉटन और रेशम की ही होती हाँ। है। खत और जो इस बनता है वो खत बनाने में
60% कॉटन लगता है, 40% सिल्क लगता है। तो उसी की बुनाई से खत बनता है और खत ही कोटा साड़ी की मुख्य पहचान है। मुख्य पहचान है। तो इन साड़ियों में हम जरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ। ये सिंपल कोटा डोरिया साड़ियाँ जी। जिनमें है, इसमें ये बिना जरी के बिना होते हैं। जरी वाली। ठीक है, उसके अलावा और क्या बनती हैं? उसके बाद सेकंड साड़ी बनती है ये जिसमें जरी यूज होती है, रियल जरी, ठीक है, जिसमें जरी भी यूज रहेगी और थ्रेड का काम भी रहेगा, मीनाकारी का जरी रहेगा की बूटी, और जरी भी बूटियों रहेगी। में जरी का इस्तेमाल हुआ। बूटियों में जरी का और पल्ले पे भी जरी का काम हुआ। हाँ, बस मगर थोड़ा बाने काम में रहता है। बाने में कोई वीविंग जरी की नहीं हुई, तो बाने में कॉटन ही रहता है, कॉटन ही रहे। ताना बाना कॉटन सिल्क रहता है हाँ और एक्स्ट्रा वेव जो होता है इसका हाँ, डिजाइन का, उसमें जरी का काम होता है ठीक है, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। तो ये स्टार्टिंग रेंज बोलते हैं इसको। इसको जरी की स्टार्टिंग रेंज बोलेंगे हाँ, हम। जरी की स्टार्टिंग रेंज उसके है। बाद फिर इससे और बेहतर साड़ियाँ इसके बाद साड़ी आती है टिश्यू वाली साड़ी। टिश्यू में। हाँ, टिश्यू वाली साड़ी आती है हाँ जिसमें बाने ताने में तो कॉटन सिल्क रहता है हाँ, और बाने में आता है सिल्क और जरी टिश्यू, ये तो टिश्यू। तो हमारा जो बाना बना उसमें सिल्क, बाने में बाने का सिल्क। कोटा डोरिया का टेक्सचर देने के लिए हाँ सिल्क तो डालना कंपलसरी है ही हाँ, सही, लेकिन जो बाने में अपन कॉटन डालते हैं उसको हटा के अपन ने जरी डाल दिया, उसकी जगह जरी ले लेता तो है। ये अपना हो गया टिश्यू कोटा साड़ी। और जो आप मुझे बता रहे थे, ये वही साड़ी है जिसके लिए जनाब जी अब्दुल हकीम जी को हाँ, नेशनल अवार्ड मिला है, ये जी वही साड़ी है। ये पापा को नेशनल अवार्ड मिला था हाँ, इसी डिजाइन पे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा जी पीस है। और इससे भी कोई ऊपर का श्रेणी होती है, क्लास होती है, हाँ, इससे और महंगी साड़ियाँ। इसके ऊपर और इस ये तो सिंगल टिश्यू हो गया। हाँ फिर इससे भी अगर अपन थोड़ा और कीमती साड़ी खरीदना चाहे और अच्छा डिजाइन वाला साड़ी खरीदना हाँ चाहे तो ये डबल टिश्यू का साड़ी होता है। हाँ इसमें ताना हाँ तो सिल्क का और कॉटन का रहता ही है, लेकिन जो बाना जो रहता है हाँ। उसमें पूरा डबल टिश्यू रहता है। तो डबल टिश्यू बोले तो मतलब आपका कहने का मतलब है हमारे जो टिश्यू जो जरी लग रही है वो डबल डबल क्वांटिटी डबल की लगती है। डबल गुना उसमें जरी लगती है। हाँ जो और जो अपन इसके अंदर जो अपन शटल जो डालते हाँ हैं, जो अपन इसके अंदर वीविंग करते हाँ हैं, तो उसमें जो जरी का जो धागा रहता है हाँ, वो सिंगल बोबिन के ऊपर डबल धागा डबल धागा रहता है। भर के और फिर उसको तो डालते इसमें हैं। जो शाइन आएगी और जो फील आएगी वो और शाइन और ज्यादा फील आएगी, और जरी का इस्तेमाल मतलब चांदी का इस्तेमाल इसमें डबल हो और साड़ियों जाएगा। के मुकाबले नियरली डबल होगा। जी उसके बाद आप ये कह रहे थे कि जिन साड़ियों में और हम्म, काम और मेहनत और बुनकर की मेहनत लगती है, वो उसमें कितनी तीलियां लगी हैं? फिर दूसरा ये तो जरी का हो गया। हाँ फिर अब साड़ी का जो कॉस्ट जो हाँ रहता है हाँ वो रहता है काम के ऊपर हाँ डिपेंड रहता है। जैसे ये डबल काम है, हाँ ये एक ही फूल में दो कलर हैं, हाँ इसमें यहाँ पे दो फूल और हाँ जरी भी है, हाँ तो इस वजह से इसका काम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके चार्जेस भी बढ़ जाते हैं हाँ। और इसका खूबसूरती भी बढ़ता है उसके साथ तो साथ। जितनी तीलियां होंगी हाँ बुनकर का उतना ही समय हाँ, लगेगा। जैसे मान लो कि अमूमन 35 तिल्ली 45 हाँ 40 तिल्ली तो इसमें हाँ अमूमन रहती है, हाँ, लेकिन अपन को चाहिए कि बहुत खूबसूरत और और अच्छी बारीक और साड़ी और नफीस बारीक काम हो। साड़ी, तो 70 तिल्ली हाँ, 80 तिल्ली तक भी साड़ियाँ इसमें हम बनाते हैं। और उनको बनाने में 2 से 3 महीने हाँ, लग जाते होंगे, एक दो साड़ी बंडल। बनाने में, इस वाले साड़ी को बनाने में लगभग 2 से ढाई महीने, और ज़्यादा तिलियाँ रहेंगी ना तो 3 महीने लग जाते हैं। तो अगर मैं सही हूँ अपने अंदाजे में, तो साड़ी की कॉस्ट में रेशम और कॉटन की जो एक कॉस्ट है हम्म, वो तो वो फिक्स्ड तो है। बेसिक कॉस्ट है। उसके बाद हमारा कितना जरी हुआ, हम्म, और जो बाना है, जो हमारा डिजाइन की डिटेलिंग है, उसमें कितनी तीलियां इस्तेमाल हो रही हैं, उसी के वो अकॉर्डिंग दो रहता बड़े है। मेन फैक्टर्स हो जाते जी हैं कि चांदी का कितना इस्तेमाल हो गया जी, और और कारीगरी का कारीगर ने समय कितना कितना मेहनत समय किया लगा। है और कितना समय लगा है, कितनी तिलियों से काम हुआ है, उसकी वजह से इसका कॉस्ट डिपेंड करता है, और अपन ने साड़ी के अंदर कितना जरी यूज किया है।